जी लवणा जी, द वॉइस इज नॉट क्लियर। हाँ, अभी मैं सॉरी। बस इसीलिए मैंने पॉज किया है क्योंकि मैं चेक कर श्योर। रहा था कि अभी तक एंटरटेनमेंट आया या नहीं आया। या आई होप द वॉइस अमेजिंग इज क्लियर। एंटरटेनमेंट। ग्रेट। गिव मी अ मोमेंट ना, आई रिकनेक्ट द मैजिक बैक, मैंने इसीलिए पॉज Raj किया bhai, था। I just want to make a few comments या श्योर before सर, प्लीज गो अहेड। yeah. First is congratulations, you're doing well, and please carry on. This थैंक यू, is थैंक यू। we want you to do it on a daily basis so people get addicted. Your choice of music, the choice of music is so awesome. I think I think we know where it comes from. It's deep rooted या within you. So obviously, I mean थैंक that's beautiful, and we want you to carry that on. Just या a couple of sentences I want to do that is I think you will swipe out all the spaces combined. That is how the power that you carry. Okay. Many दैट इज many people फ्लैटरिंग can't सर। even many people can't even collect 10 people. I think IC is behind you. Obviously the rest of it. Uh, दिस इज फॉर आई सी। yeah. Yes. And your see that 420 that you run on YouTube. It's no longer needed. Spaces is the new way to for going forward. I think we all are here. We all will support you on everything that you do. Awesome. Okay. If जी, थैंक यू वेरी मच सर, yeah, थैंक यू just वेरी wanted मच to सर। make these few comments. I'm here listening anyway. So cheers. Yeah, so thank you sir. And this is an experiment which I am trying to carry out right now, and we shall see where will it take us. अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, अगर मान के चलें it's नहीं getting नहीं होगा unsuccessful or 100% something होगा. like that. We are there with you. So please carry on. Cheers. Yeah, okay, thank you sir. तो चलिए मैं जब तक इस चीज को वापस ठीक करता हूँ, शुड वी बिगिन द सभा सर, इंडियन ट्रॉल लवर साहब, बिकॉज हमारे पास में अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आया है रिगार्डिंग जरनावाला इन पाकिस्तान। वहां यस पे एक मैंने ऊपर एक देयर हैज अ वीडियो भी चर्च लगा बीन दिया है। अटैक्ड। या प्लीज प्लीज And कैरी ऑन। I'm here to also listen to your monologues that you don't generally give. I don't want that you go on other people's spaces and give monologues. I'm here to listen to you. I should put a headphone and listen to you and fall asleep when you're talking. That is my motive. ओके सर, Okay. थैंक So यू वेरी मच। carry on, carry on. We are here to listen to you. जी Okay. Cheers. जी, थैंक यू सर, थैंक यू। जी, इंडियन ट्रॉल लवर साहब, ये लेटेस्ट न्यूज आपको मिल गई होगी मेरे जी ख्याल जी से। मैंने ऊपर एक वीडियो भी लगा दिया है, उसका हाँ, एक्सक्लूसिव तो वीडियो थोड़ा है। दर्शकों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑडियंस, उनको थोड़ा ब्रीफ आप कर देंगे। Yeah, so in Pakistan, as everyone knows, एक टाउन है जदनवाला, फैसलाबाद के पास में। एंड वहां पे एक क्रिश्चियन को फॉल्स ब्लास्फेमी का चार्ज लगाया है। एंड एज रिजल्ट ऑफ दैट, जैसे वहां पे होता है, मॉब गॉट इनसाइटेड and they start burning all the churches actually present in that small town. There are few churches actually, one by one. और आप ऊपर वीडियो में देख सकते हो, there is sloganeering, people are driven away, and there are mobs of thousands on the street. This is quite rampant and ongoing situation. Uh, let's see what happens as a result of this. What is the fallout of this? जी, लवना सोचिए। जी, मैंने तो वीडियोस भी शेयर करी हैं। वहां पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो चर्च पे कैसे अटैक हो रहा है। द क्राउड हैज लिटरली बर्न्ड डाउन द चर्च। They literally Exactly. destroyed the church, they burned down the building, and they have even attacked many minority community residences in that area. So this is something which is very serious, and this is something which needs to be discussed for the reason कि हमारे पास जितने भी पाकिस्तान या पाकिस्तान बेस्ड अथॉरिटीज या जो भी स्पेसेस में आते हैं। ओके, वी हैव आईसी। ओके आईसी, प्लीज कंटिन्यू, उसके अच्छा, बाद ये में तो बात मेरा पेट करूंगा। डोमेन इलाका है, तो मैं इसमें ना थोड़ा अपडेट देता हूँ कि ये जी जो है होता है ना,
पिछले साल क्या हुआ था कि एक अच्छे अपमार्केट एरिया में हिंदुओं की दुकानें थी, ठीक है। सडनली वहां से 4th फ्लोर से ना किसी ने कुरान फेंक दी और ये सारे के सारे मोमिन भाई चढ़ गए, उनकी दुकानें तोड़ दी। अब किस हिंदू के दिमाग खराब है कि वो कुरान की बेगुरबती करेगा? व्हाट दे डू इज कि ये जो एरिया है ना, दीज आर पॉश एरियाज, ये सर ये कुछ नहीं है, ये लैंड ग्रैब है। ये तरीका ये यूज करते हैं टू ग्रैब लैंड ऑफ द माइनॉरिटीज। दिस इज द हार्डकोर रियलिटी। आप जितना भी चेक कीजिए, ये देखिए, ये जो अभी एक मंदिर तोड़ा था इन्होंने कुछ पहले, वो प्लॉट 9 करोड़ का बेच दिया इन्होंने डेवलपर को। तो ये दिस इज नथिंग बट लैंड ग्रैब। सो ये इनको कोई इस्लाम से लेना देना नहीं है, ये भड़वे हैं साले सारे। इनको ये जिनको दबा सकते हैं उनकी लैंड ग्रैब करते हैं। So that's all I wanted to say। मैं वापस लिसनर पे जाता हूँ। थैंक यू सर। जी, thank you very much, sir, and please don't go on listener. ठीक है, we need you. So we are discussing this right now, and we would definitely like everybody to put his or her opinion regarding this. क्योंकि हमने देखा है कि मैंने ऊपर में भी वीडियो शेयर की हैं ऑलरेडी, और आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। मैं भी इसको शेयर करके लगा देता हूं कि सच इज द सिचुएशन इन रियासत पुदीना। सो व्हाट कैन बी से अबाउट इट। और इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, और खास करके जब इंडिया के अंदर की बात हो, तो ये क्रिश्चियंस और ये पाकिस्तानी मोमिन जो मुल्ला पॉपुलेशन है, वो इंडिया के रेसिडेंट्स को बहकाने, समझाने, पढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आप हमेशा देखेंगे कि वो हाथ मिला लेंगे। सर एक काम कर जी दो, टाइटल पे ना जी वो हैशटैग पाकिस्तान लिख दो, क्योंकि ये सवाल जब कुछ आजाद जैसे लोग आएंगे, मैं हाँ, उनसे पूछूंगा कि Yeah, भाई I'll do तुम्हें, that. हाँ तुम्हें तुम्हें हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में तो तुम्हारा आए दिन दिल जल रहा होता है। वो अलग बात है कि तुम शिया और अहमदियों को तो मुसलमान ही नहीं मानते, शिया को भी नहीं मानते। सर तो इंडिया शिया में शिया माइनॉरिटी में इनका दिल जलता है क्रिश्चियंस के हाँ लिए। मणिपुर मणिपुर चिल्ला रहे हैं अभी, हाँ, पर इस क्रिश्चियन पे के लिए कभी भी चिल्ला रहे एक हैं। ट्वीट नहीं होगा, एक ट्वीट नहीं होगा सर। इनसे इनसे इनकी इनकी इनके घुटनों में पानी भर जाएगा, पर ट्वीट नहीं करेंगे अपने उसके बारे में। ये मुनाफत की हद है। ये मैं तो कह रहा हूँ कि हैशटैग पाकिस्तान डालो, लिख दे। Yeah. बी के वो नहीं लिखना, वो तो इनको पता भी नहीं होगा एक्रोनिम क्या है, अंग्रेजी तो पढ़ते ही नहीं साले कभी। तो उर्दू में भी लिख दो। अच्छा, I will just give a small update. अभी तक जितना मैंने खंगाला है, 5 churches in total have been attacked in that town or nearby. और मैंने डिफरेंट एंगल से 3 का तो फुटेज ऊपर लगा दिया है, 3 different churches getting attacked. तो आप वो देख सकते हैं, अलग अलग मीडिया सोर्स से लगाया हुआ है। And that's pretty violent actually, so user discretion is advised. Thank you. और इसमें इनकी ना मैंने लोकेशन भी देखना, ये सारी प्राइम लोकेशंस में है, ठीक है। नथिंग बट टू गेट लैंड। ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये तो अपनी बहन को भी बेच देंगे यार पैसे के लिए। एक एक मैंने डॉन का भी आर्टिकल लगाया है, वो भी देख सकते हैं आप। सर ले दे करके तो क्वेश्चन वहीं पे चल रहा था है ना, कि ये फिर रोते क्यों फिरते हैं? आप ऐसा करते हैं, आप वैसा करते हैं। व्हाट इज दिस? यहां खुद को क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके बारे में आप देख रहे हैं क्या सिचुएशन है? सच इज द सिचुएशन ऑफ माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान। सच इज द सिचुएशन।
Okay, we have Jayadeen Sahab. Yeah, please. मैं अभी लेके आ जाता हूँ माइनॉरिटी को, क्रिश्चियन माइनॉरिटी को यहाँ पर। आप लाएं लाएं लाएं, हम बात करेंगे, उनको मैसेज करें। मैं तो अच्छी तरह से, मैं तो अभी बुला के ले आता हूँ उसको। वो ये डिस्कस करना जरूरी है ना सर, क्योंकि जर्नवाला में ये चीज, और ये मत समझिएगा ये कल परसों एक महीने पहले की घटना है। ये अभी घटना जो हम बात कर रहे हैं वो 1-1.5 घंटे पहले घटी है। This is an ongoing situation actually. इट्स एन ऑनगोइंग सिचुएशन। टुडे टुडे अभी हो रहा है ये। जब हम बात कर रहे हैं, द चर्चेस आर बीइंग बर्न, पीपल आर बीइंग अटैक्ड, माइनॉरिटी कम्युनिटी मोहल्ले के घर के लोगों को घर को जला रहे हैं लोग। और ये हम कोई एक महीने पहले की बात नहीं कर रहे हैं, ये अभी की बात है, 2 घंटे पहले की। जी, इंडियन टॉलवर साहब टेक इट अवे। बिफोर दैट आई वुड लाइक जेडीन साहब, इंडियन टॉलवर साहब आप कहें, फिर Sure. जेडीन साहब से ले लेंगे। When we signed the Nehru-Liaquat Pact, things were clear कि minorities की तौहीन ये सहन की नहीं जाएगी, और किसी भी कंट्रीज में दोनों कंट्रीज के अंदर अगर हो रहा होगा तो अपोजिट कंट्री हैज द राइट टू ऑब्जेक्ट ऑन द इंसिडेंट्स। हमने आज तक, मुझे नहीं लगता कि ये माइनॉरिटीज के ऊपर नेहरू लियाकत पैक्ट के अंडर we have talked to them in adamant language. We should be we should be firm and adamant in what we think of Pakistan's use of their political structure which goes against the minority and their rights, जो उसके country के existence के बाद होते आ रहा है। हमें जानना होगा कि when we talk of Christians, we should also include other minorities like the Ahmadiyas and like the Hindus and like the Sikhs and नहीं all नहीं, the शिया भी ऐड कर दो यार। शिया शिया काफिर शिया, वो साला वो बड़वा जो व्हीलचेयर वाला मर गया, वो तो शिया शिया काफिर शिया भी चलाता था, वो वो बड़वा। आईसी भैया, वो जो बॉम्बर्स होते हैं ना, वो जो 2009 में जो बॉम्बिंग की अपने थी रिजी कश्मीर बॉय में, उनकी बात कर वो रहे हैं ना। वो शियाई हाँ थे हाँ हाँ। आईसी भैया, वो दैट्स नॉट डिफरेंट। नहीं नहीं, उसे हमें फर्क यार, एक सेकेंड, इट्स अ वॉर ऑफ नैरेटिव यार। जो अच्छा हाँ, फिर नैरेटिव वैसा देखा हमारा जाए तो बिकता ठीक है। है, शिया भी ठीक है। वैसे देखा जाए तो हाँ, शिया भी add all the groups जो oppressed हुई है, not only the religious groups but also the ethnic groups that have been subsequently driven out of their lands. For example, the Pashtuns have been thrown out of areas, the Sindhis, native Sindhis, who are far better and for moderate, जो सिंध एक प्रोग्रेसिव एरिया हुआ करती थी, now Karachi has become a shithole where Orangi town and goons from Orangi town simply stab people, loot them, आपको खुलेआम लूटा जाएगा, and there is absolutely nothing you can do about it because entire political structure condones it and supports it. The Punjabi supremacists need to be driven out, beaten out, and trashed and cut out to ensure that Pakistan becomes stabilized and a country that follows the democratic norms. नहीं 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 नहीं, इट गेट्स डिसइंटीग्रेटेड इनटू 4 सेक्शंस। एक हम ले जाएंगे, एक सिंधु देश बनेगा, एक खैबर पख्तूनख्वा का वो कुछ अफगानिस्तान ले जाएगा, और एक बनेगा ये बलूचिस्तान। तो ये है, एक अफगानिस्तान ले जाएगा, डूरेंट लाइन को वो मानता नहीं है। एक वो पंजाब बनेगा, इनका जो पंजाब है वो पाकिस्तान रह जाएगा। सिंधु देश अलग बनेगा, ये बलूचिस्तान अलग बनेगा, वो जो कश्मीर सॉरी नहीं, पंजाब जम्मू का जो इलाका है वो, और गिलगित बल्किस्तान हम वापस ले लेंगे। दिस विल बी द एंड ऑफ इट। तो ये स्टेबलाइजेशन कुछ नहीं, द मोर इट इज डिस्टेबलाइज इट इज बेटर इनटू फॉर अस। लड़ो सालो, मरो, एक दूसरे का सर फोड़ो, फॉर ऑल आई केयर। लेकिन सर क्वेश्चन तो वही रह जाता है ना, किसी भी पाकिस्तानी भाई से हम बात करते हैं, किसी से भी, वो न्यूज चैनल हो या यहां हो, हर जगह आपको एक ही चीज मिलती है, माइनॉरिटी माइनॉरिटी माइनॉरिटी, इंडिया की माइनॉरिटी। इनके नेताओं से लेके, इनके पॉलिटिशियन से लेके, सबको एक ही रोना होता है, इंडिया की मिनॉरिटी, इंडिया की मिनॉरिटी। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया? Okay, we have many people joining us. So, anybody else wants to start? Take up the point further? Am I audible? Okay, I am.
अरे नहीं, आप कैन यू स्टार्ट विद कि बिकॉज यू हैव स्टडीड दिस बिफोर, यप। तो आई एम गोना यूज यू एज अ लेवरेज पॉइंट कि आप जरा ये बताओ कि माइनॉरिटीज पे तशद्दुद कब से शुरू हुआ था पाकिस्तान में, इफ यू हैव रेडी इंफॉर्मेशन, हाँ, so यस। that gives a context to the situation. हम we start from back from the 70s, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ टू स्टार्ट द टॉपिक। जब सिंध वगैरह से बहुत लोग जाने लग गए थे, हिंदू वगैरह जो जाने लग गए थे, एक इन्होंने एक डिक्री साइन करी थी कायदे आजम ने, नाम याद नहीं अभी, टू स्टॉप द लोअर कास्ट हिंदूज गोइंग। उन्होंने कहा था हमारी टटिया कौन उठाएगा, जो अभी बचे हुए हैं ना, राइट। और आपको अभी भी जॉब्स निकलते हैं, उसमें लिखा होता है नॉट फॉर मुस्लिम्स। मैं आपको लगा के दिखा दूंगा, जी जी, वो बिल्कुल जो बिल्कुल। गटर साफ करने वाले हैं, आपने शायद ये आपने भी रेज किया, ये वहां से स्टार्ट हो गया था, 47 से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उनकी पड़ एब्सोल्युटली। गई थी। हाँ, तो उसके बाद इफ यू हैव मोर इंफॉर्मेशन कि कैसे इन्होंने फिर मुतैला पाकिस्तान, जो जियाउल हक ने सत्यानाश किया सब चीजों का, अगर वो आप एक शॉर्ट मोनोलॉग दे रहे हैं तो या एवरीबडी गेट्स दैट इंफॉर्मेशन। जी। तो चलिए हम चलते हैं, एक कहानी आपको सुनाते हैं। कहानी है 14 अगस्त 1947। एक मुल्क आजाद हुआ, या जिसको कहते हैं उसका जन्म हुआ। नाम रखा गया पाकिस्तान। और ये एक ऐसी पोजीशन थी, एक ऐसी कंट्री थी जिसको कि अर्स्टवाइल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एज ए बफर जोन की तरह तैयार किया था। अब बफर जोन की तरह तैयार करने के पीछे उनका मकसद क्या है और वो चाहते क्या थे, वो जान लेते हैं। जो अर्स्टवाइल इंडिया था उसमें से दो हिस्से काटे गए, एक ईस्ट में एक वेस्ट में, और कह दिया गया कि यहां पाकिस्तान है। अब ये किया गया था किसके द्वारा, तो मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड दे देता हूं। ये बैकग्राउंड और ये कहानी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर्स का जन्म हुआ था। मैं तारीखों वगैरह में नहीं जाऊंगा बिकॉज लंबा हो जाएगा, ठीक है। जिसको कि हम कह सकते हैं देवबंद। ये नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। कहानी वहीं से निकलती है। ये मोहम्मद अली जिन्ना के साथी है। मोहम्मद अली जिन्ना की बात अगर हम करें तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक पाक मोमिन को नबी हुजूर ने जो जो करने को मना किया था, वो हर काम उन्होंने एक नहीं कई गुना बढ़ा के किया। तो ये इतने ही पाक मोमिन थे। और इन्होंने ही वो टू नेशन कंसेप्ट थ्योरी वगैरह ये लेकर के और पाकिस्तान तो बना लिया, लेकिन इनकी हालत ये थी कि वो बिना पेट्रोल के मरे छटपटाते हुए। बट द थिंग्स एंड द क्वेश्चंस आर स्टिल देयर। होल्ड ऑन, लेट मी, देयर इज अ फोन कॉल, गिव मी 10 seconds. So I see. Can you call the one, the Christian guy from Pakistan? मैंने मुर्शिद को भेजा Hmm. है, Hmm. ही इज अवेलेबल बिकॉज ही इज द बेस्ट पर्सन। मैंने एक हिंदू एक्टिविस्ट को भी भेजा है, वो ठीक भील है, वो भील भील काफी करके है डॉक्यूमेंट उसको, करता है। भील। हाँ 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 हाँ, हाँ उसको भेजा है, वो ऊपर नहीं आएगा ना, मैं उसको तो उसको। मेरी उससे डीएम पे बात होती है, मैं उसको हाँ, बुलाता मेरी हूँ। भी होती है उससे, बट वो ठीक है, लेट्स नॉट नेम बिकॉज आई एम ऑलवेज वरीड, वो तो शक्ल दिखा के आ जाता है। हाँ, तो
ठीक है, एनीवे we'll delete this recording after that. तो एनीवे तो वो है, अभी मैंने भेज दिया है, तो लेट्स हियर इट। मुझे डर लगता है ना, ये दोनों अपने नाम से ही आते हैं, तो ये भी तो डर रहता लाइक जस्ट थोड़ा सा ऑफ टॉपिक मैं बताता हूँ, है। एक जस्ट न्यूज दे देता हूँ कि लंदन के साउथ हॉल में इंडिपेंडेंस डे परेड थोड़ा सा एक प्रोसेशन निकल रहा था, तो भारत के झंडों के साथ निकल रहा था, तो उसको खालिस्तानी डिस्टर्ब करने आए थे, तो खालिस्तानियों को हमारे बॉयज ने दौड़ा दौड़ा के भगाया के पीटा है। तो दैट्स सम अचीवमेंट। मैं उसका वीडियो बना के डाल रहा हूँ अभी। अच्छा, राज भाई को तो लगता है कि कोई लंबा वाला वो आ गया कॉल। यार ऊपर जनरल दिया को बुलाओ यार, ये इनकी मूछें जो है ना, नथुलाल से भी लंबी है। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इन्होंने जितना पाकिस्तानियों को परेशान किया ना अपने आईडी से, किसी ने नहीं किया। तो जनरल दिया, वेलकम, ऊपर आइए। ये जनरल भी साहब आपको तशरीफ पाकिस्तान लाए। की अच्छी हिस्ट्री पूरी बताएंगे आपको। इनके पास फैक्ट्स बिल्कुल फिंगर टिप्स पे रहते हैं। इन्होंने बहुत पाकिस्तानियों की धो धो के लिए, और ये बुला बुला के लेके आते थे मेरी स्पेस में। इनका भी बहुत बड़ा हाथ था, जो आज मेरी बड़ी स्पेसेस होती है, ये आजकल आते नहीं इतना, बट इन्होंने एक बारी, दो बारी बहुत बड़े लोग इंस्टाग्राम से उठा के मेरे पास लेके आए थे। सो आई ऑलवेज अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट जनरल जिया फॉर व्हाट ही हैज डन बैक चैनल। आज मैं फ्रंट चैनल पे बोल रहा हूँ, तो है वो रिस्पेक्ट। I beg your थैंक यू। pardon. Actually, one of my friends was watching the spaces, अच्छा, and सो he व्हाट इज literally called me because he had a Maulana Sahab. इट? उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा मौलाना साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। मैंने कहा पूछिए। तो वो कह रहे हैं 384, उन्होंने कहा 12 नंबर हदीस में बयां है, और वो इस चीज की बात कर रहे थे, रमजान की बात कर रहे थे, कि जब पाक महीने गुजर जाएं उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या फरमाया नबी मोहम्मद को। तो आप तो जानते ही हैं मेरी उर्दू कितनी खालिस है मोहतरम। तो मैं उतर आया उर्दू में उनके साथ, मैंने कहा जी सही अल बुखारी की हदीस है ना, 384 नंबर है। तो अब ये मेरे फ्रेंड मुझे गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमने धर्म छोड़ दिया, तुम साले मोमिन हो गए हो। मोमिन हो गए हो। अरे तो मेरे को भी बहुतों ने बोला है। अरे वो भी ठीक है, बट हम सर, अब हम बहुत आपको मैं उस मोड से ना बाहर निकालने के चक्कर में हूँ। वी हैव अ बिगर फाइट टू फाइट। वो बहुत छोटी सी। मौलाना साहब वाज लाइक आपकी उर्दू इतनी बढ़िया कैसे है। मैंने कहा 3.5 साल घिसा है मौलाना साहब, अभी आप नहीं समझेंगे। अरे बहुत धोखे भी गए मौलाना साहब, वो वो बोलना मत यार। होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगी, है ना। हम्म, I see immediately going into flashback. सॉरी चलो एवरीवन, खैर। जो स्पेस है दिस इज माई स्पेस, ठीक है, लिटरली माई स्पेस। यहाँ कितने लोग माई स्पेस यूज करे हैं ये बताइए, रेज योर लेकिन हैंड। अब मैं बहुत छोटा था, डायपर पहनता था, पर मुझे पता है माई स्पेस क्या थी, क्योंकि मैं हाँ, तो 23 साल का। सो लिटर अरे अरे, मर्दे 23 साल में डायपर पहनते थे। देख 23 साल का हो रहा था उस टाइम, बहुत छोटा था मैं। पर मुझे हाँ, एक चीज याद है, उसमें बड़े बड़े जो म्यूजिक वाले थे ना, बड़े मतलब ये जैसे इफ यू कैन से आज की आरियाना ग्रांडे वगैरह, उनके पूरे पेज होते थे, ब्यूटीफुल लुकिंग पेजेस। मतलब दिस वाज द प्लेस। वो लिंक देते थे माई स्पेस का कि इफ यू वांट टू नो व्हाट इट इज। तो मैं वापस अब से स्वागत करता हूं ना, वेलकम टू ट्विटर स्पेस नहीं, वेलकम टू माई स्पेस, बिकॉज वेन एवर यू आर इन माई स्पेस इट इज माई स्पेस। सॉन्ग हो, म्यूजिक हो, एंटरटेनमेंट हो एंड डिस्कशन हो, इंटेलेक्चुअलिटी के साथ, वी आर हियर फॉर यू, राइट। अच्छा, वो कंटिन्यू कीजिए सर, वो वाला, उसके बाद जो आप बता रहे थे। हाँ, तो मैं और कंटिन्यू करता हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना तक की कहानी आपको मैंने बताई थी
कि ये एक ऐसे मोहतरम थे हमारे अजीज, जो मतलब आप समझिए कि कुरान पाक में, हदीसों में जिन चीजों को एक नहीं 21 बार मना किया है, तौबा किया है, वो काम सारे के सारे ये करते थे। और वही जो है वो कायदे आजम है। तो आप मुझे बताइए कि एक ऐसा इंसान जो कहता है अपने आप को कि मैं मोमिन हूं, लेकिन वो जो पोर्क सॉसेज खाता था। एक्सप्लिसिटली जो चीजें मना की गई हैं, जो हराम है, वो एक नहीं 21 बार वो बंदा करता हो, उसको आप अपने मुल्क का, जबकि आपने अपने मुल्क का नाम रखा है पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो भैया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखना था तो कम से कम मोहम्मद अली जिन्ना का नाम तो नहीं लेना था। क्योंकि इस्लाम के नाम पे अगर सबसे बड़ा कोई धब्बा है, विस्की है, पोक सॉसेज है, लड़की भगाना है, 2 नंबर के धंधे करना है, तो वो तो आपके कायदे आजम है, हमसे ये ज्यादा आप जानते हैं। पोर्क सॉसेज पे एक जोक बताता हूँ, ये रियलिटी में हुआ था। एक बारी सुबह वो कायदे आजम रुके हुए थे किसी जगह पर, तो उनके साथ उनका गुर्गा भी था, तो वो सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट खा रहे थे। तो उनसे मिलने एक मोहतरम आए और उनका बच्चा भी साथ आया। ठीक है, अब मोहतरम आए और वो बैठे, वो बात कर रहे, बच्चे ने देखा सॉसेज को, उन्होंने और उसने सॉसेज उठा के, वो बीच वाली प्लेट में थी, ठीक है, साइड वाली में, कायदे आजम के नहीं, बीच वाली प्लेट में उसने लेके खाने लग गया। कायदे आजम कुछ बोले नहीं। जब वो चला गया तो ने अपने गुरके को बोला कि तूने उसे रोका क्यों नहीं, वो तो पोर्क खा गया। कहता, उसने बोला कि हजूर, दैट टाइम आई हैड टू फिगर आउट टू थिंग्स, इज योर रेपुटेशन मोर इम्पोर्टेंट और द बॉयज हंगर। अगर वो उस टाइम बता देते उसके अब्बा, हजूर को रोको, ये पोर्क की है, तो आपकी तो पूरी रेपुटेशन ही हो जाती। तो दिस इज एक्चुअली अ रियल केस, ये कायदे आजम के, यप दिस यप इज यप योर यप कायदे। यप सो द और होल एक और कंसेप्ट कम्स बैक टू, हाँ जी बोलिए सर। जी एक और चीज है कि उर्दू की जब बात होती है तो नो बडी इज अ बिगर एग्जाम्पल देन मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका नाम भी उर्दू वाइज कर दिया गया। वैसे उनका नाम असल में था जीणा भाई। जी 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 करेक्ट करेक्ट गुज्जू करेक्ट भाई थे, करेक्ट। क्या गुज्जू भाई गुज्जू थे। भाई थे, गुज्जू भाई थे। कल ही मेरी उसमें बहस हुई थी, उनको तो उर्दू बोलनी भी नहीं आती थी, बाय द वे, बिल्कुल जी नहीं ये लोगों आती बिल्कुल, को पता नहीं। और उनका आगे नाम सुनो, था जीणा भाई पुंजा। हाँ, आगे सुनो, इनको लेके कौन आए थे वापस जब ये यूके जा रहे थे, इनको अहमदी पकड़ के लेके आए थे कि थी। नहीं अच्छा, जाओ। उससे भी ऊपर है सर, ये टोटल नौटंकी जो कहानी शुरू हुई ना, ये टोटल कहानी ही शुरू हुई है सर, नाम रख दिया ना ब्रिटिशर ने, सर सैयद अहमद खान। ये टोटल नौटंकी वहीं से शुरू है, टोटल नौटंकी मैं बता रहा हूं आपको। ये जो सर सैयद अहमद खान है जो ना, इन्हीं के वजह से ये जो पूरा नौटंकी आज 100 साल से हो रही है, ये टोटल नौटंकी उस बुढ़े की वजह से है। मैं बता दिया हूं आपको, ना वो बुढ़ा और उसका भाई पैदा हुआ होता, ना ये बवासीर होता। क्यों? क्योंकि जब इस्लाम का एडवेंट इंडिया के उन पार्ट्स में हुआ, अर्स्ट वाइल इंडिया, जो आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरियाज को मानते हैं, दैट वाज सूफी इस्लाम, दैट वाज सूफी इस्लाम अप until 13th century. 13th and 14th century onwards, जब मुगलों का राज हुआ, it was slowly and steadily replaced by the Sunni ideology. ये है कहानी। And when the Britishers arrived, they found Sunnism to be more easy to control rather than the Sufism. और यहां पे ये चीज क्लियर मैं कर दूं, आई एम नॉट विथ सूफीज्म, बिकॉज इनके भी जो है ना, इनके बहुत के साथ कारनामे बड़े खराब है। इन्होंने जी जितना वो वॉलेटाइल और
फोर्स कन्वर्जन अंडर द स्वॉर्ड किया, वो लोगों को पता ही नहीं है। कश्मीर इज द बिगेस्ट एग्जांपल। इसमें एक मजे बासमती इस्लामाबाद। को सुन के मजा आ जाएगा। No, 2 दिन पहले I say don't stop him. Let him go. 2 दिन पहले आपको एक मजेदार चीज बताता हूं। 2 दिन पहले मुझे ट्विटर पे एक ट्वीट दिखा। डॉजे साहब ने, उसको एक बंदा था, उसको पकड़ के वो कूट रहे थे। मैंने कहा क्या है भाई? बंदे को देखा तो डॉजे साहब दिखा रहे थे एक वीडियो की क्लिपिंग नुसरत फतेह अली खान की, जहां पे वो अपना नॉर्मल जो उसका है ना नफरत बुतों से, काफिरों से, उस पे गजल गा रहे थे। तो ये दिखा के उन्होंने बताया, तो नीचे एक हमारे हिंदुस्तानी फटाक से उन्होंने क्लिपिंग लगा दी जहां पे नुसरत फतेह अली खान साहब एक गाना गा रहे हैं, गजल गा रहे हैं, जिसमें मैं तेरी दीवानी, मैं पी की दीवानी, मैं ये वो, मैं वो। उन्होंने कहा उसको गाली देके कि अबे देख, ये कह रहे हैं ना कृष्ण की ये भजन है। और नीचे में आपको यकीन नहीं, मेरा दिमाग इसी से फटा। नीचे में कम से कम 25 हिंदू लड़कियों के मैसेजेस थे कि हाँ हम तो मान गए, ये नफरत फैलाता है, ये देखिए कृष्ण की कितनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और वो सारी बच्चियों का प्रोफाइल को मैंने क्लिक जब करा तो सब पे देखा प्राउड सनातनी, हिंदू शेरनी, XYZ। मैंने नीचे एक ही मैसेज लिखा। मैंने लिखा कि यहाँ पी जो है और यहाँ मेरी और मेरी जो फीमेल फॉर्म में ये जो गजल गा रहे हैं, ये कृष्ण के लिए नहीं है। दिस इज फॉर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ये खोजे गा रहे हैं। खोजा का मतलब यूनुच, जिसको आप कहते हैं ट्रांसजेंडर्स, वो होते हैं। एंड दे रेफर देमसेल्व्स इन द थर्ड जेंडर। यहां जो पी शब्द का इस्तेमाल है पिया के लिए, वो पिया कृष्ण नहीं है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। और इसी से 2014 के बाद बने हिंदू योद्धाओं को मैंने कहा यही समस्या है हमारे साथ, यही समस्या है। तो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल दैट आई चुप गेव यू कर आईसी। भोसड़ी के गोबर खाने वाले कुत्ते के बच्चे, मादर चोद। अबे यार निकाल इसको इंडियन यार, अबे ये आ जाता तेरी है। तो 1 मिनट, भोसड़ी के, तू अपने आईडी से आता नहीं है, तू इंडिया का फ्लैग लगा के आता है, तेरी ये औकात नहीं है कि तू कौन है? कहीं जा इसको सको। निकालो पहले, इसको निकालो, हटाओ हाँ यहाँ से। भोसड़ी नहीं के, नहीं, तेरे पहले को, गालियां देंगे ना लिसनर पे, फिर निकालेंगे, ऐसे हाँ पहले कैसे? तो तेरे पहले को गालियां देंगे। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे तो कहीं एंट्री मिलती नहीं है, तुझे इधर एंट्री लेने के लिए भी इंडिया का झंडा अच्छा, लगाना पड़ा गरीब भोसड़ी कितना के। है आपने नोटिस किया? गरीब कितना है? आवाज कैसे बना रहा है? चुप कर, ऐसे वैसे आके सीधी लगी दिल पे ऐसे नचरिया, ओ भोसड़िया, ओ भोसड़िया। अबे होले, जाने अबे आराम। यार वाली गलियां। हाँ, अभी आराम से बचवा। अभी तुमको मालूम कहाँ है? आज तो पाकिस्तान की MKB, ठीक है, कि जो सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि अब्बा हुजूर अगर अम्मी पे चढ़ाई करे हैं तब तो जवाब दोगे। लेकिन हमको मालूम है कि मौलवी साहब चढ़ाई कर रहे हैं तुम्हारी अम्मी पे, तो तुम तो यही जवाब दोगे मेरा बेटा। आराम से बचवा। इसीलिए कहे ना, अभी जानते नहीं हो किससे पाला पड़ रहा है। हम पीछे पड़ गए तो ना अब्बा हुजूर काम आएंगे ना अल्लाह मियाँ। देख लीजिए जाके YouTube पे जल्दी पता चलेगा इनको। जो कितने जो रोते फिरते हैं मैं अपना बहुत हाथ टाइम के पे। बाद बोल रहा हूँ कि अब मैं बहुत टाइम के बाद मैंने बंद कर दिया था बोलना, बिकॉज आई प्रॉमिस यू पीपल। देखो मैंने बोलना बंद कर दिया, पर मैं एक चीज की गारंटी देता हूँ। मैं एक वर्ड बोलता था, तुम्हें मिलेगा DTR ट्रीटमेंट, और वो भी अब प्रोफाउंड तरीके से। अब जिसको पंगे लेने हैं, ले लो, फिर तुम्हें समझ आएगा कि आज तक वो क्यों भागता फिरता है। हारिस सुल्तान ना मेरी स्पेस पे आता है ना यूट्यूब पे आता है। ये मतलब इनके बाबूजी, इनके पप्पा ऐसा रो के भागे हैं हमसे, और ये आ गए ओ चुप कर, आके ऐसे लगी दिल पे तेरी कटरिया। अबे चूके, आराम से रहो ले, उर्दू में गुफ्तगू कर ले, चाहे अरबी में आ जा, हदीस निकाल ले बच्चे, आजा अरबी में पढ़ूंगा तेरे सामने। इसीलिए कहा ना, अभी पता नहीं है कि कौन आया है, धीरे धीरे चल जाएगा, धीरे धीरे, हौले हौले। एनीवेज,
So as I was saying, this was the concept of Pakistan. तो एक बफर स्टेट है डफर पॉपुलेशन के साथ, आप समझ, इट्स अ बफर स्टेट विथ अ डफर पॉपुलेशन, ठीक है। एंड व्हेन आई से विद अ डफर पॉपुलेशन, मैं ये पहले भी कह चुका हूं, डोंट बी फूल्ड, डू नॉट बी फूल्ड। ये मत समझिएगा कि देर इज अ सेपरेशन बिटवीन आर्मी, द जर्नल, द पॉलिटिशियंस एंड द कॉमन मासेस, जो सुबह में, ठीक है ना, चने और पाए का नाश्ता करते हैं, उसके बाद दोपहर के नमाज के बाद मुल्ला जी से क्या क्या सुनते हैं। डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दैट। An average Pakistani guy on the streets having his fill of beef kebab and biryani, जब आप उससे बात करेंगे तो उसके मुंह से कभी भी ये नहीं निकलेगा कि हम सब एक हैं। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द आर्मी, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द पॉपुलेशन, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द पॉलिटिशियंस, वी आर ऑल वन। हमें पता है अपनी हिस्ट्री, हमें पता है। कभी नहीं इनकी एग्जिस्टेंस में आपको एक बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बोले। जो भी बंदा आपको मिलेगा जो इस चीज को रिकॉग्नाइज करेगा, आज शर्त लगाता हूं चैलेंज के साथ, चैलेंज ये है कि पाकिस्तान में रहकर कोई पाकिस्तानी आपको करेक्ट बात या द रियल फेस ऑफ पाकिस्तान दिखा दे, पॉसिबल ही नहीं है। जो भी पाकिस्तान की सच्चाई या जो भी पाकिस्तानी आर्मी के बारे में आपको हमको पता लगता है, जो भी मोहतरम आते हैं, वो ऐसे बंदे हैं जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया है। तो दिस इज देयर रियलिटी, दिस इज देयर रियलिटी। और अभी यहां पे नौटंकी कर रहे हैं कि दैट वी हैव, वो मोटा भटूरा, क्या नाम है उसका भटूरे का? दो है, एक तो अरे वो शेख रशीद है, जर्नलिस्ट नहीं है, कोई तो बता दे। जर्नलिस्ट मोटा नहीं, मैं तो शेख रशीद और वो सोच रहा था, वो आलू जो है दूसरा मोटा जर्नलिस्ट। अरे वो पता नहीं भटूरा यार, क्या नाम है वो? अरे उसको जो अपनी आरजू आंटी बुलाती हैं, जिनको जिनको गौरव आर्या पेलते रहते हैं। ओ वो तो पिज़्ज़ा पतला हट। है, नहीं अरे वो वो तो भटूरे पतला सी है यार। शक्ल का मोटा सा, क्या नाम है उसका? This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. अरे पिज़्ज़ा यार, हट। ना नहीं ना वो तो ना, अरे वो नहीं, वो तो स्मार्ट लुकिंग है यार। चीमा, चीमा, कमर चीमा, 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 कमर चीमा, कमर चीमा, कमर चीमा, ओके गॉट इट, डिफेंस कमर चीमा। एनालिस्ट है, डिफेंस एनालिस्ट। हाँ, डिफेंस एनालिस्ट, एनालिसिस और समझ गए ना, एनालिसिस में इसको फर्क नहीं पता होगा, हालांकि दोनों में एक्सपर्ट होगा, वो अलग चीज है। तो एनालिसिस को ये पर एनालिसिस समझता है। उसका डबल फेस है। वो इंडिया की स्पेसिस में जब जाता है तो वो डिफेंड करेगा, पर जब वो आरजू काजमी के होता है तो देन ही कंसीड्स कि यार देखो बोलना पड़ता है, पर ये हमारी हालत ये है। तो सर जी, तो मैं आपसे यही पूछता हूं ना कि ये लोग जब खुला कबूल करते हैं कि हम इंडियन स्पेसेस में जाके, इंडियन लोग कौन है सर, कौन इनको सुनते हैं? 100 लोग अगर सुनते हैं, उसमें से 90, 94, 95 प्लस हिंदू सुनते हैं, करेक्ट? वो आप एक्स मुस्लिम वाला देख लो मूवमेंट, पैसा बिल्कुल, किसने दिया था? सब हिंदुओं हिंदूज ने ने दिया था, आज भी दे इंक्लूडिंग रहे यू हैं एंड मी, इंक्लूडिंग यू एंड मी। जी। और फिर बाद में क्या पता चला, मैंने जो एक्सपोज किया, हिंदू बच्चियों को डिस्कॉर्ड सर्वर पे ट्रैप करके, ओयो रूम्स में बुला के, उनकी जिंदगी बर्बाद करके, उनको ब्लैकमेल करके उनके वीडियोस बना रहे हैं। आपको याद है ना, विक्टिम्स आकर के, विक्टिम्स ने टेस्टिमनी दी थी कि दिस इज हैपनिंग इन द नेम ऑफ एक्स मुस्लिम। फीमेल्स ने आके टेस्टिमनी दी हमारे पास कि हमारे साथ ये हुआ। वो हिंदू बच्चियां थीं, उनका क्या? कुछ नहीं।
लेकिन पॉपुलेशन आज भी वो धतूरा खाए हुए, सेक्स मुस्लिम, सेक्स मुस्लिम। वो रात के 8 बजे के बाद दुकान गिराएंगे, शटर गिराएंगे, विस्की लेंगे, वाइफ उधर हल्ला कर रही है, चिल्ला रही है, कोई दिक्कत नहीं, कान में हेडफोन लगाएंगे और बाहर बैठ जाएंगे और आनंद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इसकी झांटे कितनी लंबी थी, इसकी उम्र कितनी थी, कौन सी हदीस में क्या है, और पूरा ज्ञान ले लेंगे। अगले दिन सुबह में जाएंगे, खबर देखेंगे कि फला जगह जुलूस निकल रहा था ना, वो मार पत्थर के सबका सर फाड़ दिया। तो ट्विटर पे कहेंगे जागो हिंदू जागो। यही पॉपुलेशन है। इनको जब ये दिखा दिया, बच्चियों ने आकर के टेस्टिमनी अपनी जबान में दी लाइव स्ट्रीम में कि हमारे साथ ये हो रहा है, तो भी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। पॉपुलेशन को हमें जवाब दिया गया कि अगर इन्होंने कुछ किया है तो इन्होंने पिछली जिंदगी में किया ना, पास्ट में। और ये दलील दी गई बड़े बड़े हिंदू चैनल्स से, राइट विंग चैनल्स से। अच्छा लवनासु जी, I want to bring in one more aspect of this, जी सर। and which is the international media coverage. Now, let's say a mob beats up a Muslim men in India because of their misdeeds like minor child abuse. तो वो उसको narrative को like BBC and all, specifically the English world media, they spins it like minorities are under attack. पर जब ऐसा पाकिस्तान में होता है तो they don't even actually cover it. जी बिल्कुल, So आप देखेंगे जरनवाला वाला ये कहानी जो हो रही है, ये हम आप डिस्कस कर रहे हैं ना जनाब। यहाँ बिल्कुल BBC 0 ट्वीट्स, अल जी जजीरा बिल्कुल 0 ट्वीट्स, CNN 0 ट्वीट्स, कुछ नहीं। जो बाइडन 0 ट्वीट्स, जितने लिबरल है अमेरिका के 0 ट्वीट्स, जितने भी कोट अनकोट क्रिश्चियन पास्टर्स हैं ना, जो हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं इस्लाम के अगेंस्ट अपने दूतों को भेज करके, 0 ट्वीट्स। क्यों भाई? ये लोग माइनॉरिटी नहीं है? इनके साथ जो ऊपर आप देख रहे हैं वीडियो में, जो चर्च को आग लगा रही है भीड़, और जो चर्च को जला रही है भीड़, लोगों को मार पीट रही है, आग लगा रही है, ये कौन है? ये माइनॉरिटी नहीं है? एंड देन दे हैव द गॉल्स, और यहां पे हम एंटरटेन करते हैं। कुछ हमारे पास के ही खोटे सिक्के हैं, हमारे पास के ही कुछ खोटे सिक्के हैं, जो चंद पैसों के लिए नजिस्तानियों को भी गोद में बिठा लेते हैं या उनकी गोद में बैठ जाते हैं पैंट उतार के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक करमहीन है, आप लोग जानते होंगे करमहीन। करमहीन का मतलब समझते हैं ना, जिसके कर्म एकदम खराब हो। ठीक है, तो यार डायन भी 2 घर छोड़ती है, डॉलर के चक्कर में ऐसी पैंट खोली तुमने अपनी, ऐसी पैंट खोली है कि पीछे ट्रक का साइलेंसर घुसा लेता। वो शर्म कर, थोड़ी सी शर्म कर, थोड़ी सी कर। पैसे ठीक है, खाने को नहीं मिल रहा तो अलग बात है, चंदा मांग लो थोड़ा सा, हम लोग मदद कर देंगे। अपना पिछवाड़ा बेचने की क्या जरूरत है? हैं? अभी खालिस्तानियों को अपना पिछवाड़ा बेच दिया, बताओ। गलत बात है करमहीन बेटा, ये सब नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, गरीबी छाई हुई है, खर्चा नहीं चल रहा है, आई अंडरस्टैंड। 10 20 50 डॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बर्गर हो जाता है, गुजारा चल जाता है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन उसके चक्कर में पिछवाड़ा बेच दोगे अपना, बड़े दुख की बात है। वकालत करने गए थे ना, एक तो वकील की इज्जत क्या होती है पूरी दुनिया की नजर में, वो तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। ठीक है, एक तो वकील, उस पर से भिखमंगा, उस पर से खालिस्तान की गोद में बैठा हुआ, मतलब लिटरल साइलेंसर अपने पिछवाड़े लेके घूम रहे हो। ये मैं नहीं कहूंगा शर्म आती है या नहीं, क्योंकि मुझे पता है नहीं सर आती आप है। एक एस्पेक्ट भूल गए हो। वो हम फोटो वाली डीपी में बिलीव करते हैं, वो दूसरे वाली डीपी में करते हैं बिलीव। हाँ तो हाँ, उन्होंने दूसरे वाली डीपी कर रखी है
एक तरफ से गूदा भंजन कर रहे हैं खालिस्तानी और दूसरी तरफ से उनका चीरहरण कर रहे हैं इस्लामी। तो दोनों तरफ से उन्हें डीपी डबल पेनिट्रेशन करवा रखा है। मेरा बस इन लोगों से यही दरख्वास्त है कि इस तरह के दो कौड़ी के हिंदुस्तान में जो लोग हैं उनसे मैं पूछता हूं, बीए एलएलबी की डिग्री ली हुई की कितनी इज्जत करते हो यार? हैं? कम ऑन यार, वो सिविल कोड छाप छतरी वाला है। दिस इज जस्ट डिस्पिकेबल। ऐसे ऐसे लोग, और जैसे अपना वो था हरिया, उसकी ऐसी बजाय आज तक रोता फिर रहा है। हम लोगों के खिलाफ सीआईए में शिकायत करी थी, गो फंड मी प्राइवेट डिटेक्टिव्स के साथ खड़ा किया था, तो मैंने उसको टेलीफोन करके लाइव स्ट्रीम में अपना पता बताया। मैंने कहा एक काम करो, 5,000 में से $2,500 मुझे भेज दो। करेक्ट ट्रॉलवर साहब? हाँ सही है ना? मेरे को बिल्कुल। और मेरे को वो वाली स्ट्रीम याद है। अच्छा हाँ राजवी, मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट डीएम किया, जरा चेक करना, बिकॉज इफ यू से ओके ओके तो फिर मैं अनाउंस कर दूंगा। ठीक है, एक सेकंड। या प्लीज कंटिन्यू। यहाँ पे हाँ स्पीकर्स भी काफी हैं। somebody if he wants to say something regarding the Jarnawala, what is happening in the minority of Pakistan, पाकिस्तानी minorities की क्या स्थिति है, मैं mic is all जब तक open. आप तक चेक करते हो, बेचारा पूरा इमरान खान ने बड़ी कोशिश करी कि इस्लामाबाद में एक मंदिर बन जाए, जिसकी लैंड भी एलोकेट हुई थी। और मेरे पास वीडियोस हैं कि जैसी उन्होंने पूजा करनी शुरू करी, मतलब होता है ना, मतलब भूमि पूजन वगैरह, तो ये हमारे पीसफुल रिलीजन के मौलवी आके कैसे उन्होंने उसको तोड़ा। और ये उन्होंने अपनी लैंड खुद खरीदी है, मतलब गवर्नमेंट ने दी है, उन्होंने पे किया जो भी गवर्नमेंट रेट था, और वो अपने पैसों से बना रहे हैं। पर ये बनाने नहीं दे रहे इस्लामाबाद में, कि इस्लामाबाद में कोई मंदिर नहीं बनेगा। तो ये इनकी सोच है। पर इनका बड़ा दिल दुखता है कि भाई आपने वो राम मंदिर के नाम पे हमारा एक नॉन यूजेबल मस्जिद गिरा दी, जहाँ कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। तो राज भाई, अगर वो पढ़ लिया मैसेज तो आप बता दो, थम्स अप थम्स डाउन कर दो, तो आई विल गेट दी आंसर। आई थिंक इज बिजी। हाँ थम्स अप, हाँ। हाँ तो यार देखो, ऐसा है कि यार वो राज भाई इज न्यू इन दिस, तो वो रिकॉर्डिंग दब गई है, बट डोंट वरी, वो रिकॉर्डिंग वो हम डिलीट कर देंगे। सो फील फ्री, जो भी बोलना है वो रिकॉर्डिंग हम डिलीट कर देंगे इमीडिएटली आफ्टर द स्पेस एंड्स। उसमें वो मैं राज भाई को बता दूंगा। राज भाई यू जस्ट गो बैक टू योर स्टैट्स, उसमें या एक या ऑप्शन है डिलीट I'll do रिकॉर्डिंग। that because I'm new here. ये शायद हाँ दूसरी या हाँ, तीसरी नहीं बार नहीं हम नहीं, कर रहे हैं, तो मुझे नहीं आता पहले ठीक से। पहले क्या होता था कि पहले रिकॉर्डिंग आपको एक्टिवेट करनी पड़ती थी। अब इन हराम खोरों ने बाय डिफॉल्ट वो एक्टिवेट करी है, यू हैव टू हाँ डिसेबल इट एवरी टाइम। ये यस उल्टा कर दिया इन्होंने, विच आई एम वेरी पिस्ड ऑफ। तो वो हाँ, ऑटोमेटिकली पहले रिकॉर्डिंग ऑप्शन आ रही देते है। थे कि अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो उसको ऑन करिए स्लाइडर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अब अब इन्होंने क्या है, ऑन रख दिया। ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होगा, आपको ऑन नहीं करना है तो उस स्लाइडर को हटाइए। करेक्ट, उल्टा कर दिया। तो वो, पर वो ठीक है, तो जैसी आपकी आप एड करोगे उस पर स्टैट्स पे जाओगे, उस पर डिलीट रिकॉर्डिंग दबा देना। तो फील फ्री टू टॉक। वो कई बार क्या होता है कि बिकॉज रिकॉर्डिंग इज ऑन ना, तो lot of people become uncomfortable discussing volatile topics। तो इसीलिए मैंने आपको मैसेज भेजा था। इसलिए नो आप मेरा इश्यू नो देखोगे, इश्यू। मेरा हाँ देखो कभी भी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं होती। अगर होती है हाँ गलती हाँ। से तो मैं वो उसको क्रैश कर देता हूँ। तो ठीक है, तो तो आप सर अभी सीख फील रहा फ्री। हूँ थोड़ा सा, मतलब समझिए अब टॉडलर दो हूँ। तीन दिन हो सर, 2-3 दिन हो, 2-3 दिन हो, विल बी हाँ अभी बैक टू सीख रहा हूँ, तो नॉर्मल। थोड़ा सा गिव मी सम, जिसको कहते हैं ना, लीवे। हाँ नहीं, बस ये मैसेज बाकियों के लिए था, तो दे कैन नाउ बी स्पीकिंग फ्रीली, उनको टेंशन नहीं होगा। श्योर 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 श्योर। ओके होल्ड ऑन, हमारे पास में कौन है ये? लेट मी सी। ओके होल्ड ऑन। या Sandeep Tiwari is here. Drunk chimp, you want to say something? Go ahead.
I wanted to ask something. I'm not very informed on these things. So my question was, it is an Islamic country, and they are pretty clear that the whole world should be Islamic. So when they are abusing minority, it is bad for democracy and all that, but that was their agenda always, right? Right. The question So here is, if we don't have any issues with them being an Islamic nation, we have an issue with them asking everybody else to be secular. आप समझ रहे हैं ये दोगलापन? okay, right. So we are criticizing their duality. Absolutely. आप अगर अपनी चॉइस में आप कह रहे हैं कि लेट्स से somebody says कि आई एम वेजिटेरियन, ओके फाइन, ये आपकी चॉइस है, आप वेगन है, वेजिटेरियन है, लेकिन आप सारे दूसरे लोगों को भी कहानी कह रहे हैं कि डू दिस डू दैट, इट डज नॉट सफाइस. आपने So डिक्लेयर कर दिया यू आर एन इस्लामिक नेशन, फाइन विद अस, नो इश्यू, बट देन व्हाई डू यू एक्सपेक्ट एवरी अदर नेशन टू बी सेक्युलर? I understand now. So, but technically, shouldn't we be crying that we are a minority compared to Muslims and Christians? We, who is we here? Let's say Sanatanis or Hindus. I think we are less than them. So-called Abrahamic religions, we are less compared to them, no? नहीं सर, compared to them regarding the entire global population or Yes, regarding, yes, sir. Regarding global population. yeah absolutely, then we can claim that. लेकिन अभी भी उनकी टोटालिटी हमारी पॉपुलेशन से कम है सर. सारे नेशंस की पॉपुलेशन को जोड़ भी लेंगे ना, वी आर स्टिल अहेड. वी आर स्टिल अहेड. So, in this, there was some document released regarding that recently banned. What was it? Some organization that was planning something for 2047. So ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट. ये बात कर रहे हैं रंगचिम साहब रिगार्डिंग दैट पीएफआई डॉक्यूमेंट. यू yes, रिमेंबर yes, yes. इंडियन ट्रोल साहब, 2047 वाला विजन जो था. In जी that they बिल्कुल. mentioned that we are going to play victim card until we are strong enough to take them on. वो स्ट्रॉन्ग का है 35% मेरे हिसाब से, बाकी इट्स ओपन डिस्प्यूट. और मैंने हिस्टोरिकली देखा है हालांकि मेरी नजर 35%. में, जी जी बोलिए बोलिए. मैं कह रहा हूँ जब जैसे ये 35% क्रॉस करते हैं ना, जिहाद शुरू हो जाता है, मतलब कि इन फुल फोर्स. तो वो नंबर का ही वेट कर रहे हैं. इट्स अ वेटिंग गेम. सॉरी, Yeah, कंटिन्यू. because 13 to 15% they start normal disturbances. 18 to 20% they start capturing land and stuff like that. And after 20 they start attacking out in the open. That is what I heard. तो ड्रंक चिम, तुम्हारे तो दोनों नामों से उन्हें नफरत है. वो तो ड्रंक को भी अलाउ नहीं करते और ना चिंपांजियों को भी अलाउ करते हैं, क्योंकि दे डोंट बिलीव इन थियरी ऑफ एवोल्यूशन. आप क्या करोगे जनाब आली? So I'll drop the alcohol and I'll take up mushrooms and I'll tell them, I'll inform them of the mushroom and ape theory that we evolved because monkeys ate mushrooms. Okay, so this thing apart, so I have a अबे friend whose यार एक father worked सेकेंड, तेरे को in. औकात, तेरे को हिंदी में बोलने में क्या दिक्कत हो रही है? अच्छा, वैसे नहीं, अगर इंग्लिश हिंदी में में, बात चल रही थी तो मैंने उसी में कंटिन्यू कर ना दिया. हिंदी में शुरू तो करो भाई. यहाँ पे जैसे मेरे एक ऑडियंस फ्रेंड है, उसके डैड जो उसने बताई, अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट कर दें, कि वहां पे ये सिचुएशन हुई कि ये पहले पहले रेफ्यूजी स्टेटस में गए. स्वीडन ने इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम 1 साल का कोई वोकेशनल कोर्स करो और अपनी लाइफ वगैरह सेट करो. लेकिन फिर ये वहां पे अपने राइट्स डिमांड करने लगे, स्वीडिश लोगों को प्रोवोक करने लगे. सो व्हाट आई लास्ट हर्ड वाज स्वीडन ने सेड, स्वीडन ने ऐसा बोला है कि तुम अपना 1 साल का वोकेशनल प्रोग्राम कंप्लीट करो और निकलो यहाँ से.
क्योंकि ये वहां पे गंद मचाने लग गए। एंड अनदर थिंग आई वांटेड टू से, आई लिव्ड इन पोलैंड फॉर सम टाइम। तो पोलैंड में अगर आप यूरोपियन बॉम्ब ब्लास्ट का अगर आप एक मैप खोलेंगे ना कि यूरोप में कहाँ कहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, यू वोंट फाइंड एनीथिंग इन पोलैंड। क्योंकि पोलैंड में उन्होंने रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट नहीं किया जो सीरिया वगैरह से आ रहे थे। पोलैंड वाज आउट ऑन द स्ट्रीट्स एंड उन्होंने बोला वी विल ओनली एक्सेप्ट क्रिश्चियन रेफ्यूजीज, विल नॉट टेक इन मुस्लिम रेफ्यूजीज। सो देयर वर नो बॉम्ब ब्लास्ट इन पोलैंड लाइक फ्रांस एंड स्टफ। तो जस्ट अनदर थिंग, बिकॉज some कुछ लोग बोलते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। तो पोलैंड ने नहीं लिया और पोलैंड में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हुई है। पोलैंड का जो वो एक मिनिस्टर था, उसका बड़ा फेमस इंटरव्यू है कि हाउ मेनी रेफ्यूजीज यू हैव टेकन, मुस्लिम रेफ्यूजीज, ही सेड 0। उसने, इसका बड़ा फेमस इंटरव्यू था, हाँ क्या वी वोंट टेक एनी। मैं उस टाइम पे पोलैंड में ही था और उन्होंने लोग सड़कों पे आ गए थे कि वी विल नॉट एक्सेप्ट देम। तो आज की डेट में जान बची हुई है ना उनकी। बिल्कुल जान बची हुई है। लेकिन जब मैं वहां पे था तो लास्ट लास्ट में क्या शुरू हो गया था कि people from Turkey and Pakistan, the first stabbing I heard na in my city in Poland, it was a Pakistani guy who stabbed a Turkish guy. So that is how it started, and after that उन्होंने टर्की और पाकिस्तान वालों के टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट्स और ये सब एक्सटेंड करना बंद कर दिया। So many of them had to go back. So ये माइनॉरिटी तो इनकी स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसको काउंटर कैसे किया जा सकता है? क्योंकि फिर अब इन्होंने ये इस्लामोफोबिया वाला भी एक नया चैप्टर खोल दिया है। अभी करंट जो इशू देख भी रहे हैं कि वही इस्लामोफोबिया के साथ में ब्लास्फेमी का ना, ये जो जलन वाला एग्जैक्टली। पाकिस्तान में जो हो रहा है, दिस इज अगेन द सेम थिंग। वो चर्च की जो वैंडलिज्म हो रही है, लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, आग लगा रहे हैं लोगों के घरों में, और ये ताजा खबर है, एज वी स्पीक ये हो रहा है। वी डोंट नो कितने लोग मरे हैं, कितने लोग मरेंगे, क्या होगा अभी, वी हैव नो आइडिया। लेकिन देन वी हैव पीपल कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान ट्राइंग टू टीच अस एंड टॉकिंग अबाउट इंडिया। इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, ये क्या है, वो क्या है, इसका कैसा है, उसका कैसा है। दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। But what's the maximum that can happen? उनको वैसे ही उनको आईएमएफ का पैसा देर देर से मिल रहा है। They can stop the aid, but unless someone is going to invade Pakistan and do something, I don't think things will change for them. देखो, मैं पाकिस्तान की हेडलाइंस पढ़ रहा हूँ एंड ऑल ऑफ दिस इज फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। आज की मैं हेडलाइंस पढ़ रहा हूँ। रुपी इन पाकिस्तान हिट्स एन ऑल टाइम लो, ये हेडलाइन नंबर 1 है। हेडलाइन नंबर 2 है कि इलेक्शन इज गोना बी डिलेड। नंबर 3 है IMF program vows to be completed, however there are hiccups. चौथा है पेट्रोल प्राइसेस आर एट ऑल टाइम हाई। पांचवा है पावर सरचार्ज ऑफ ₹1.52 per unit to be soon. Government seeks to recover 24 billion rupees from Karachi consumers. So you look at the headlines and all of the headlines वो पाकिस्तान की हालात बताते हैं कि करंटली क्या है। जी लाना सर। Yeah, absolutely. Okay, we have Black. Yeah. I just want to say that, the term blasphemy for Pakistan is everything is blasphemy. If you are opposing them, it's blasphemy. You are trolling them, this is blasphemy. You are opposing that fuck guy called, Jinnah, then it's a blasphemy. That is, if you troll their Qawmi Tarana, is blasphemy. If you call their flag, it's a blasphemy. Mean they want to oppress you, they want to torture you. They will say you are doing blasphemy and they're going to torture you down in Pakistan. That's the main thing they do with minorities and other religion there. So that's we have. They don't have any red line for what is the term blasphemy means. So everything you want to do, you want to torch someone, that guy is doing blasphemy. Just tell for them. I am telling about the Pakistan, not anywhere else.
Okay, we have drunk chimp. Okay, go ahead. So I was wondering, for example, ever since we were in school, जब से हम स्कूल में हैं तब से सेक्युलर होता है, ये होता है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। जबकि आप जो आपको मैं कई दिनों से सुन रहा हूँ, आप बिल्कुल 100% बात कहते हैं कि सच बोलते हैं कि घरों में तो सब यही बातें कर रहे हैं कि ये दाढ़ी ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। ठीक है, घर में सब जहर उगलते हैं, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे कुछ होता नहीं है। और जब मारपीट की बात आती है तो अपने सारे बंदे पीछे ही खड़े होते हैं, बोला अरे नहीं मेरा तो कैरियर है, मेरा तो परिवार है। और मैं एक मेरा यहाँ पे एक मेरी ये मेंटालिटी है कि देखो इसी काम के लिए तो हम टैक्स भरते हैं और इसी काम के लिए हम रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। तो ये शो ऑफ स्ट्रेंथ इंडिविजुअल्स की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छी सोसाइटी बनाएं और अच्छी इकोनॉमी बनाएं। तो ये काम गवर्नमेंट का है और हमको क्यों अपने हाथ में लेना पड़ रहा है, ये मैं समझ नहीं पा रहा कि लोग अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में रखें। जी, बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। इंडियन ट्रॉलर साहब, वुड यू लाइक टू टेक द क्वेश्चन? शुड आई? जी, you can. Okay, the simple thing is, government इसलिए नहीं करना चाहती because government is a direct representation of the population, of the common population. अब मुझे एक बात बताएं, आप मान लीजिए मैं नहीं जानता आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या क्या करते हैं। सपोज मैं एज्यूम करता हूं आप बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, आप प्रोडक्ट एक्स बनाते हैं। यू हैव अ मोनोपोली ऑन प्रोडक्ट एक्स। इट डज नॉट मैटर whether you output 500 units or whether you output 700 units. आप हैं जो प्राइस को डिसाइड कर रहे हैं, इट्स अ मोनोपोली। ठीक है, जैसे कि इंडिया में अगर आपको इसका एग्जांपल लेना है तो मैं आपको एकदम एग्जैक्ट एग्जांपल दे देता हूं। अप अंटिल 2005 इंडिया में 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक मोटर व्हीकल्स, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, उनके पास में स्पार्क प्लग जो होता है ना, उसका सिर्फ एक ऑप्शन होता था, दैट वाज बॉश। ठीक है, एंड द अदर वाज मिंडा। माइको की बात कर रहे हैं ना, माइको। जी, जी, माइको बॉस, हाँ। so it Myco from Bosch, so it was a monopoly. It did not make any difference whether they manufactured 1000 pieces, whether they manufactured 800 pieces. प्राइस वो तय करते थे। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा व्हाट आई एम हिंटिंग एट, कि पॉलिटिशियन भी जो होते हैं, दे ट्राई टू डू द बेयर मिनिमम। इतना ही करेंगे जिससे कि आप थोड़ा सा खुश रहें और अगले 5 साल के बाद मुझे एक बार फिर से वोट दे दे। दिस इज कॉमन ह्यूमन फिनोमिना। Until and unless we raise our expectations, and by raising our expectations, I do not mean expectations in 5 years. जैसे कि मैनिफेस्टो निकलता है ना, भाई बहनों 5 साल में ये कर देगा, भाई बहनों करना कि नहीं करना, मित्रों। नो, वो 5 साल का मैनिफेस्टो देख करके ही जो हम खुश हो जाते हैं ना, उसमें कुछ टेंटेटिव बातें लिखी रहती हैं, हम ये धारा हटा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ओके, 2 टर्म्स ऑलमोस्ट हो गए, अब वो चीज ओके। व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू सीक मोर। अंटिल एंड अनलेस वी सीक मोर, मोर का मतलब होता है पब्लिक प्रेशर। पब्लिक प्रेशर का मतलब होता है डेमोक्रेसी में आपको सड़क पे धरना देने का पूर्ण अधिकार है। तो जब कभी खबर आती है ना कि हमारे गवर्नमेंट ने किसी चीज को रोक दिया, कास्ट बेस्ड सेंसस को ओके कर दिया, तो हमें सड़क पे हमें भी 10,000 की तादाद में एक दिन ही बैठना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, एक दिन। एक दिन आप एक दिन बैठ के तो देखिए। द पॉलिटिशियंस शैल नो कि अब उनसे एक्सपेक्टेशंस ऊपर हो गई हैं, और इमीडिएटली दे विल इमीडिएटली स्टार्ट रिएक्टिंग टू दैट। दिस इज पॉलिटिक्स। जब तक आप लोड नहीं बढ़ाएंगे रेसिस्टर पे, तब तक से काम नहीं होना है।
आपको लोड बढ़ाना पड़ेगा। आप कहते हैं ना सर क्या छोटी छोटी बात पे किसी पिक्चर में कुछ दिखा दिया, नहीं, करना पड़ेगा। तभी ये चीज इंश्योर होगा कि कोई पिक्चर आगे ऐसी नहीं बनेगी। करना पड़ेगा आपको। नौटंकी आप जहां देख रहे हैं वो सरकार करे या कोई भी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज करे, आज आपकी डेट में आपके पास में इंडिया में सबसे बड़ा दुश्मन अगर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन का है या कोई ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा काम में बाधा डालता है, तो आपको मालूम है वो कौन है? वही मिलाओड़, हमारे महामहिम सब लोग, पता है ना, जिसको हम बहुत प्यार से कोठा बोलते हैं। ठीक है, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि एक प्रिविलेज्ड आदमी जो अपनी जिंदगी में लिटरली बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून अप हिज माउथ एंड अ गोल्डन डिक अप हिज एस, उसका चाचा ताया मामा जो था वो भी कोर्ट में घिसते रहता था, हिलाते रहता था परिचय से, है ना, आपको मालूम ही है कैसे होता है। एंड अ सिंगल पर्सन literally like a dictator is dictating the terms to the masses. A single person, a single person. And you call this a democracy? You call this a democracy? I call this a dictatorship. पावर आपके हाथ में नहीं है। प्रधानमंत्री क्या कर लेगा आपका? क्या कर लेगा? गवर्नमेंट क्या कर लेगी? पत्थरबाजी हुई ना, एक्शन हुआ ना, ऊपर से माई बाप जो हुजूर है उन्होंने कहा है रोक दो। इट्स अ डिक्टेटरशिप। विस्की पी के उनका जो मन करेगा वो होगा, आपकी मेरी वही किस्मत है, हमको इसी में जीना है, इसी में सड़ना है। वोट देके क्या कर लोगे? तो इसमें मैं लग रहा शिव जी, मैं दो चीजें पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर आप इजाजत दें तो। जी सर, जी सर, प्लीज कंटिन्यू। बॉसमैन हाँ भी जी। आ गए हैं हमारे पास। हाँ जी, पहली चीज तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि हाँ, वो जूनियर बात करना चाह रहे थे भाई, दिन भर फुटबॉल में है। जूनियर बात करना चाह, खैर ड्रंक आप बात कर ले। हाँ जी, बस मैं फटाफट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर आप बात करें। तो लवड़ा शिव जी, मैंने अपनी मैनेजमेंट में जो थीसिस लिखी थी अपनी डिग्री कंप्लीशन के लिए, वो मैंने ब्लॉकचेन में लिखी थी। तो मैं ये सोच रहा था कि ये इश्यू बेस्ड वोटिंग जो है, हम ब्लॉकचेन पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते अपनी कंट्री में? तो हमें सड़कों पे नहीं उतरना पड़ेगा, यू कैन जस्ट गेट ओपिनियंस ऑफ योर पीपल ऑन ऑन ब्लॉकचेन। आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए ब्लॉकचेन को, और सबके डिसीजन उसमें हम एक तरीके एक साथ ले सकते हैं ब्लॉकचेन को यूज करके। इट्स अ परमानेंट रिकॉर्ड, इसको मैनिपुलेट भी नहीं कर पाएंगे वो। और दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि जो अमेरिकन ज्यूरी सिस्टम है, वेयर द पीपल हैव अ से, कि ठीक है इस कम्युनिटी में है तो ये कम्युनिटी का इसके बारे में क्या कहना है, इस केस के बारे में। तो ज्यूरी सिस्टम एंड ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंटेशन फॉर वोटिंग एंड पार्लियामेंट्री डिसीजंस, दीज आर द टू क्वेश्चंस। Very good questions indeed. Very good questions indeed. Before I respond, बॉसमैन आ गए हैं। Shall we take his opinion too? हेलो, हाँ बोलो जी बोलो सर, मालिक मालिक। बोलो बोलो। क्या क्या तुम्हारी आवाज आ रही है, बोलो जित जो भी बोलने का है। अरे जूनियर, बाप रे, कौन आया? जूनियर इज हियर। जूनियर हेलो, इज हाँ हेलो, हाउ आर यू डूइंग? सेब खा रहे हैं। आई एम रोनाल्डो जूनियर। Okay, you're Ronaldo Jr. Nice to meet you, Ronaldo Jr. हाँ वही, Enjoying? आजकल आजकल वही है, आजकल फुटबॉल का क्रेज है आजकल। आजकल फुटबॉल बड़ी फुटबॉल का प्यारी क्रेज। आवाज है, बड़ी प्यारी आवाज है सर। हाँ जी, बड़ी वही जो भी आवाज है, मगर आजकल फुटबॉल का क्रेज है। खैर अच्छा, आप जो आपको, भी सवाल का जवाब दे रहे थे, आप दीजिए जवाब। हाँ तो सर ठीक है सर। पहला क्वेश्चन आपने किया था, मैं सेकंड क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा, जो अमेरिका के बारे में आपने किया था सर, करेक्ट? तो मैं बेसिकली ये कहना चाहूंगा इसमें कि Yes, correct. It was about
या सॉरी, बोले बोले। हाँ, ड्रंक चेम्प साहब आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। Yes, the second question was about the jury system, और पहला question blockchain implementation for consensus. हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो वही मैं कह रहा हूँ कि सेकंड सेकंड से मैं पहले आता हूँ कि ज्यूरी सिस्टम जो है अपना, वहां जो चलता है ज्यूरी सिस्टम, आई वुड नॉट से इट्स परफेक्ट, बट आई वुड स्टिल से इट इज फार बेटर देन द जुडिशियल सिस्टम दैट वी हैव हियर। क्योंकि ज्यूरी सिस्टम में कितनी भी बुराइयां हो, कितनी भी अच्छाइयां हो, कुछ भी हो, हमारे पास एक चीज रहता है, द फेट ऑफ द पर्सन फेसिंग द ट्रायल। तो जो लीगल और बाकी लोग हैं वो तो देखते ही हैं देयर इज अ जज, बट इट ऑल्सो कम्स डाउन टू द कम्युनिटी। और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कम्युनिटी के मेंबर्स को ज्यूरी ड्यूटी करनी पड़ती है, सो हेंस दे आर रिस्पॉन्सिबल। उनको ये चीज पता होती है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी क्या है। हो सकता है आज नहीं कभी आप उनको बुलाया जा सकता है जहां मर्डर की ट्रायल हो, और उनकी फैसले से, उनकी डिसीजन से somebody might live and somebody might die. This is a very huge moral obligation. और ये moral obligation जो है ना, morality की हम बात करते हैं, ये moral obligation एक population को, मेरे नजदीक तो मैं ये मानूंगा कि 70 to 80% इंकरेज करता है कि दे फॉलो अ स्ट्रेट पाथ। क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि अगर उन्होंने 3 बार ज्यूरी ड्यूटी की है तो चौथी बार वो कटघरे में हो और उनके मोहल्ले के पड़ोसी उनकी ज्यूरी ड्यूटी में बैठे उनका केस सुनते हुए, वो नहीं चाहेंगे। सो अकॉर्डिंग टू मी इट इज फार बेटर देन द करंट सिचुएशन एंड सिस्टम। क्योंकि हम उस पर स्ट्रीम भी करने वाले हैं, स्ट्रीम करके आपको जो भारतीय न्याय संहिता है और बाकी चीज है उसके बीच में डिस्कशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो दिखाएंगे आईपीसी में। आईपीसी वाज मेड बाय द ब्रिटिश एंड इट वाज मेड बाय द ब्रिटिश टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, टू कीप द पॉपुलेशन अंडर चेक। इसीलिए आज तक हमारे पास में वो आर्केइक लॉज हैं जहां आप अगर सड़क पे जा रहे हैं तो कोई पुलिस वाला आपको रोक के लिटरली आपके साथ बेइज्जती कर सकता है, बदतमीजी कर सकता है, आप पे चार्जेस लगा सकता है, आपको अरेस्ट कर ले सकता है, इवन इफ यू आर अ डोसाइल इनोसेंट हार्ड वर्किंग मैन। तो ये पावर ब्रिटिशर्स ने पुलिस को दिया था, इसलिए कि उस वक्त गुलामी के दौरान कोई अगर लेफ्ट राइट जाए तो उसको पुलिस उठा ले। तो हम तो करीब 100 साल से इसको झेल रहे हैं। दिस इज द रीजन ऑफ द करप्शन इन द पुलिस सिस्टम। यही पावर उनका रहता है ना, हम पुलिस में हैं, तुम क्या कर लोगे, तुमको उठा लेंगे, सेक्शन लगा देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। तो अगर गवर्नमेंट ने ये बिल, but Lavna यस sir, I सर, would like to differ a little bit here. यस, कि जो हमारे वहाँ की जो पब्लिक की साइकी है, particularly certain sections, hopefully you understand whom I'm referring to. वो तो मानने वाले नहीं है, बेटा मान जाओ, भैया मान जाओ, मत करो बेटा, मत करो। तो वो तो नहीं मानेंगे ये बोलने से। सर तो उनको वैसे भी आईपीसी के तहत ही हमारे हाँ, योद्धा जो है वर्दी वाले, उनका क्या उखाड़ लेते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो बात जी आपकी बिल्कुल, एग्जैक्टली जी। मुझे भी ये लगता है कि पनिशमेंट इज नॉट अप टू द मार्क, कि लोगों की हिम्मत कैसे हो रही है ये करने की। वो तो अभी भी केयर नहीं करते ना। अभी भी मान लीजिए आईपीसी के तहत पुलिस को पावर है कि वो उठा लेगी, उसको जिप्सी में डाल के ले जाएगी थाने, करेक्ट। तो ये पावर किस पे यूज होती है, मेरा ये प्रश्न है। अगर 10 बार ये पावर का इस्तेमाल होता है तो वो 10 में से 10 बार वही मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए होता है। क्योंकि द वेरी सेम कोट अनकोट जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे थे, वो तो अभी भी घंटा नहीं लगाते, लगाते हैं, बोलिए, नहीं ना। इट इज टाइम वी चेंज इट।
क्योंकि इस सिस्टम का, इस लॉ का इस्तेमाल किया जाता है टू कीप द मेजॉरिटी पॉपुलेशन अंडर चेक. सिंपल एज दैट. इसी डर से ना बोलते नहीं. स्पेस अगर रिकॉर्डेड है, अरे भाई मेरी जॉब है ये, कहीं अगर ऑडियो मेरे बॉस को चली गई तो, या किसी ने टैग कर दिया तो, बॉम्बे पुलिस, पटना पुलिस, कर्नाटक पुलिस, पुलिस आएगी हमें उठा ले जाएगी. अभी तक आपको समझ में नहीं आया ये किसके खिलाफ इस्तेमाल होता है? ये अभी तक नहीं आया आपको? ये शुरुआत से ही मेजोरिटी को कंट्रोल करने के लिए बनाया था. करेक्ट, करेक्ट. ये कानून उनके लिए नहीं है, क्योंकि वैसे भी दे डोंट गिव टू फक्स, टू फ्लाइंग फक्स अबाउट द लॉ. एम आई करेक्ट और नॉट? बताइए. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो फिर ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? द मेजोरिटी पॉपुलेशन. हम आप डरते हैं, हेलमेट लेके निकलो. वो तो नहीं निकलते हेलमेट लेके. कभी शुक्रवार के आसपास देखा है घूम के बाजार में? हेलमेट कितने दिख जाएंगे मुझे काउंट करके बता देना. फिर लेकिन आपकी हमारी फटते रहती है. एक भी नहीं. फिर एक भी हेलमेट नहीं था. बस सफेद टोपियां नजर आती है. वही तो मेरा सवाल इसीलिए बहुत पॉइंटेड था. कोराम सर ने इसीलिए हंस के जवाब दिया. मेरा सवाल उन्हीं की तरफ था, वो समझ गए कि मैं उन्हीं से पूछ रहा हूं कि जुमे की नमाज के बाद 4 बजे शाम को कितने हेलमेट मिलेंगे आपको मस्जिद के आसपास? बताओ मेरे को. टोपी मिलेंगे, रंग बिरंगी टोपियां मिलेंगे, मगर एक भी हेलमेट नहीं मिलेगा. फिर लेकिन उसी रोड से जब आप में गुजरेंगे तो गांड फटी रहेगी हमारी. पीछे में कोई जो रहेगा उसको भी कहेंगे हेलमेट है ना, लगा लो. और यकीन मानिए अगर नहीं होगा तो बिल्कुल आपको रोका जाएगा ट्रैफिक पुलिस में और आपसे घूस वसूला जाएगा. ये लीगल सिस्टम किसके लिए है? दिस लीगल सिस्टम इज फॉर ऑपरेशन ऑफ द मेजॉरिटी. And what about the first question, Laura CG? द फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, चलिए उस पर भी आ जाते हैं, ब्लॉकचेन के बारे में. तो सॉरी टू डिफर फ्रॉम योर ओपिनियन सर. मेरा जितना तजुर्बा है फाइनेंस में, जब ये ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की बात शुरू हुई थी उस वक्त भी मैंने कहा था इट इज नॉट गोइंग टू सक्सीड. अभी आप बहरहाल देख ही रहे हैं 6 महीने 1 साल में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी. तो आई डू नॉट कंसिडर इट्स माई कंप्लीट पर्सनल ओपिनियन. आई माइट बी एन इडियट. मैं पहले ही कह देता हूं, आई मे बी एन इडियट, हो सकता है. बट ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी is not mature enough, is not controllable enough, is not verifiable enough to be implemented in situations such as elections, where the policies and the future of the nation is concerned. This is my opinion. I might be 100% wrong. Thank you. So if you're interested in this, because the government is looking at blockchain for land ledgers, because ये local level पे corruption करते हैं, जमीन इसके नाम थी उसके नाम कर दी, तो government is already exploring this. And another exploration is कि आप मान लीजिए हम एक गांव में 50 किसान हैं, हम ब्लॉकचेन पे अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, उससे ट्रैक्टर खरीदेंगे, हार्वेस्टर खरीदेंगे, या जो भी, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. तो गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस. So I'll just DM you a book about it. It can be used and it is efficient and it is very secured. It is SHA-256 encrypted. Sure sir. आप मुझे दें, मैं पढ़ूंगा. I'm always open to more knowledge. The more the knowledge, the better. जी बॉसमैन. Thank you for responding. थैंक यू सर. जी. बॉसमैन, पाकिस्तान में ऊपर में टाइटल पढ़ के मैसेज देख रहे हैं ऊपर में क्या हो रहा है? रियाजरन वाला पाकिस्तान चर्च, अच्छा चर्च पे हमला हुआ है वहां पे. ऊपर देखिए सर, ऊपर में जो ट्वीट लगे हैं उसको देखिए. 1 मिनट वाले. अरे शिट, अरे अच्छा.
पाकिस्तानी रेडिकल मॉब चैंट लब्बैक या रसूलुल्लाह इस्लामिक स्लोगन बर्न डाउन चर्च। जी जी जी, ये तो हुआ ही था। वहां ये पे तो चर्च में पूरा चर्च आग के हवाले कर दिया। मोहल्ले में घुस के जितने भी माइनॉरिटीज के घर हैं उनको फूक रहे हैं। और ये सिचुएशन 2 घंटे पहले की। इट्स अ डेवलपिंग सिचुएशन राइट नाउ। रिपोस्ट भी कर दिया है मैंने। जी। तो माइनॉरिटीज के साथ, अच्छा अब याद है सर, ये जो आपको भी तो मुलाकात होती होगी, आते हैं कहते हैं आपने क्या कर रखा है माइनॉरिटीज का इंडिया में। हाँ जी, उनके मुंह पे मारना तमाचा। ये आपने क्या कर रखा है भाई? मैं तो खैर जवाब देता हूँ भाई इनको। मैं तो जवाब देता हूँ इनको। दूसरे नहीं देते हैं, दूसरे रोकते हैं हमको जवाब देने से। मैं तो देता हूँ बराबर जवाब। वीडियोस देखिए जरा, देख के दिल दहल जाएगा। कैसे लिटरली पूरे के पूरे, बड़ा सा चर्च है सर, इट्स अ बिग चर्च, पिंक कलर की बिल्डिंग है, इट्स अ ह्यूज चर्च। पूरे कंपाउंड को फूक दिया, चर्च को गिरा दिया, ऊपर चढ़ के वो क्रॉस वॉस को मार के तोड़ के सब बर्बाद कर रहे हैं। they are literally doing it right now as we are talking. हम्म। So what about this? मैं ये थोड़े लोगों को मैसेज कर रहा हूँ भाई। कुछ लोगों को दिखाएंगे। This is the reason, this is the nation, this is the logic of what is happening in Jaranwala. And this is Riyasat-e Pudina. Anyways, sir, I must say that I have thoroughly enjoyed this session. Thoroughly enjoyed it. देखिए मैं तो अभी आईएससी की स्पेस पे गया हूँ और मेरा लास्ट ट्वीट देख रहा क्या हुआ। अब अब्बा की क्लास पसंद नहीं आई, आगे ट्रेनिंग लेनी। उनको ऐसा जलाया मैंने कि दे हैड टू थ्रो मी आउट। तो साधु साधु साधु। उनको हमारे ये सब तो जरूरी हमारे है। घर की लहरू जी से बड़ी प्रॉब्लम है। किसको? उन सबको, आईएनसी वालों को, घर की लहरू जी कौन हाँ तो हो गई ना। कौन बोल रहे हैं आप? की। यार ये कोरा भाई, ये क्या हो गया कि आपको मेरी आवाज नहीं नहीं, पहचान? मैंने आपकी आवाज पहचाने, आप आईसी है, किसके बारे में बात अच्छा कर? हाँ, किसके बारे में? अरे कांग्रेस की स्पेस पे जाता हूँ ना मैं। अरे कौन? मैं बीजेपी को यहाँ सपोर्ट नहीं करते, कांग्रेस दूर की यार बात है। आप तो वोट दे दो, वही बड़ी बात है। हाँ, वो रीजनल पार्टीज को वोट देते हैं। देखिए आप करो, मैं कहता हूँ दिल से चाहता हूँ आप ओवैसी को वोट दो। नहीं नहीं, वो तो कभी वोट नहीं देंगे। वहां से उल्टा एक्स मुस्लिम खींचेंगे वहां से। मैं कह रहा वहां हूँ से उल्टा मैं कह रहा हूँ प्रलय आ यार जाएगा जिस दिन ये उन्होंने बड़ा बुरा ओवैसी हुआ। को ऐसे वोट दे दिया। ऐसे तुमने कांग्रेस को बताया कि आपने बहुत अच्छा किया कि तुमने आम आदमी पार्टी से सीटें अरे वो छीन ली। ऐसा डिस्कशन हो रहा था वहां पर, वो डिस्कशन हो रहा था वहां पर, तभी तो गया था मैं। जी। वो कह रहे थे उनको सुनो, वो तो मेरे ऊपर राशन पानी लेके चढ़ गए तो उसमें मैं जा नहीं पाया, पर उनका डिस्कशन सुनो बिफोर दे गेव मी द बाइक। क्योंकि मैंने उनके ना पिछवाड़े में उंगली डाल दी, कह रहे इसको बाइक नहीं देंगे। मैंने लिख दिया इतना डर भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उनको मजबूरी में मुझे बाइक देनी पड़ी, नीचे बबल में डाल दिया था मैंने। तो वो कह रहे कि देखो साला असली रंग अभी दिख गया, हमने अच्छा पैतरा खेल दिया है। तो कांग्रेस इज क्लेमिंग फुल थिंक कि हमने वी टुक द स्नेक्स आउट राइट नाउ व्हिच टू अ नहीं मतलब आपको शर्म आती है? आपको शर्म आती है? मेरे को मेरे याद है मैं बेशर्म होता है ना, हाँ मैं बेशर्म हूँ। मैंने नहीं, कांग्रेस फिर भी मैं मैंने पूछ रहा मैं हूँ, कांग्रेस आप ज्वाइन किया है जाते सर, हैं। मैं कांग्रेस ज्वाइन करी हाँ तो है। बस, नहीं तो फिर ठीक है, इसका मतलब आप बेशरम है। 100% सर। मतलब एक, हाँ, एक 60 साल के अविकसित मंदबुद्धि बच्चे को वो जी 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 कह के उसको अपना बाप बनाए रहते हैं, 80-80 साल के बूढ़े उसके पैर पे गिरते रहते हैं।
तो सर आपने यार आपने मेरा स्लोगन उनसे नहीं सुना? बात करना है। नहीं सर, आपने मेरा स्लोगन नहीं सुना, तभी तो कांग्रेस ही मेरे से बहुत परेशान है। मेरा स्लोगन है कांग्रेस बचाओ, आंदोलन। हाँ, कांग्रेस बचाओ, गांधी परिवार से मुक्ति दिलाओ और शशि थरूर को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाओ। तो ये सुन के उनको मतलब आप क्या चाहते हैं कि इंडिया में जितनी भी 50-40 प्लस हमारी जो लेडीज हैं उनको आप क्या मतलब चाहते हैं? आपका मतलब नंबर कट जाए? हाँ, अब ये आपको अपना दुख आ रहा है। हाँ, तो मेरा मेरा डायरेक्ट प्रॉब्लम हो जाएगा ना। समझा करिए देखा आप। आपको दो। वैसे भी मैं उनसे बहुत पीछे हूँ। ही हैज एन एक्सपर्टीज इन बाथटब ड्रोनिंग, समझ रहे हैं ना। यार ये क्या उठा लिया आपने? वो सब दैट इज ऑल कॉन्स्पिरेसी, हाँ ऑलवेज हाँ, समथिंग। वो सब ऐसे खुद ही मर जा, क्या बात कर रहे हैं सब। वो लोग उनको देख के ही, जिसको कहते हैं ना हाय रब्बा बोलते हैं, मर जाते हैं ऐसे ही। उनकी बीवियां ऐसे ही मर जाती हैं हाय रब्बा बोल के उनको। इसीलिए कह रहा हूँ ना यार कि आप क्या किसको वो प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे वो हैं बताइए। अपने जब बाल झटकते हैं ना, लड़कियों की वो दिलों की धड़कनें रुक जाती हैं। ये बात तो माननी पड़ेगी। अभी उन्होंने एक मैंगो नहीं, की ये फोटो, बात मैं मान, अरे मालिक, ये बात मैं नहीं, 3 डिसीज्ड महिलाएं भी मान चुकी हैं जिनकी धड़कनें रुक गई हैं। दे कुडंट हैंडल हिम। देखो यही है सच्चाई। एग्जैक्टली exactly. ये गवाही में, आप क्या बात, मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं लड़कियों की सांसें रुक जाती हैं, सर रुक गई हैं, 3 की तो रुकी हैं जिनका हमारे पास रिकॉर्ड है। देखिए, इस बात में इतनी सच्चाई है कि लालू जी डायबिटीज का बहाना लगा के बेल पे हैं और वो पटना की मरीन ड्राइव पे कुल्फी खाने जा रहे हैं। आप जो कह रहे हो उस बात में भी उतनी ही सच्चाई है। देखो देखो, कांग्रेस में फिलहाल उनसे बढ़िया कैंडिडेट राहुल गांधी के अगेंस्ट मुझे बता दो, तो फिर बात करेंगे। राज भाई बताओ, बताओ मुझे कैंडिडेट। नहीं, बढ़िया कैंडिडेट तो कांग्रेस में हर साल होते हैं। सवाल है कि वो किसी बाथरूम में मिले बंद चुनाव के समय, समझ रहे हैं ना। केसरी साहब याद है, हाँ, बेचारे को टॉयलेट में बंद कर दिया सीताराम था। केसरी ना। जी हाँ हाँ सरकार, हाँ हाँ हाँ। वही मैं कह रहा हूँ कि शायद टॉयलेट में बंद मिले अरे या बाहर नहीं, सड़क पे गाड़ी के नीचे आ जाएं। एक्चुअली ये ट्रू फैक्ट, उसको सही में टॉयलेट में बंद कर दिया था। सर मैं ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूँ, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। इसीलिए तो मैंने ये हिंट दिया कि भले अब वो टॉयलेट में बंद पाए जाएं या सामने सड़क हादसे में चपेट में आ जाएं या उस दिन चुनाव के दिन पहुंचे ही नहीं, तो जब ऐसी कहानी है तो क्या कह सकते हैं, आप ही बोलिए। नहीं देखिए, अब आप अपना, अगर आपका स्पेस बंद करना है करो, क्योंकि अब मेरा दिल में उबाड़ आ रहा है कि मैं आंदोलन, आपको पता है कि जब भी मेरी कांग्रेस से लड़ाई होती है तो मैं एक स्पेस स्टार्ट करता हूँ, एक स्पेस वॉर मेरी होती है, हाँ हाँ हाँ, साधु। आंदोलन स्पेस। और उसमें जी जी, एकदम संगीतमय आंदोलन करते हैं सर। और उसके इसको समाप्त करते हाँ हैं, आप लिखें संगीतमय हाँ, आंदोलन, तो और आई, उसके बाद पर मैं हम तब तक नहीं प्रस्तुत होते हैं करूंगा ना आपके जब तक पास। आपकी स्पेस ऑन है, क्योंकि वो तो नहीं मैं करूंगा, क्योंकि और देखो, नहीं तो कंक्लूड कर नहीं देते नहीं हैं, नहीं, इसमें मैं क्या है। बिफोर वी कंक्लूड, देखो, आई वांट टू मेक अ पब्लिक स्टेटमेंट, क्योंकि वो एक तो हम डिलीट कर देंगे रिकॉर्डिंग। दूसरी मेरी पब्लिक स्टेटमेंट देखो ऐसा है, जितने भी लोग मेरी स्पेस में आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट आते हैं, प्लीज वो लव एंड रिस्पेक्ट मेरे भाई राज को दिखाए और फलवना सुर को। क्योंकि देखिए, मैं एक बहुत ही मिड पाथ लेके चलता हूँ, पर राज भाई बिल्कुल ही एक्सट्रीम पाथ लेके चलते हैं, जो आप में से काफी लोगों को पसंद होगा, जिसको नहीं होगा वो मेरी स्पेस में आ सकते हैं, पर आप में से मेजोरिटी लोगों को एक्सट्रीम पाथ ही पसंद है। तो जो आप मेरे से मुझे डीएम में मुझे गालियां मारते हैं कि यार तुम सबका साथ सबका विकास लेके चलते हो, यहां नहीं मिलेगा। तो इनको मैं स्पेशली 3 महीने से मिन्नतें करके लेके आया हूं, और मेरा एम एक ही है कि अगर मेरी स्पेस में 20 आए तो इसमें 120 आए। द डे ही इज फार बिगर देन मी इज माई विक्ट्री। एंड क्योंकि जो अगली इलेक्शन आ रही है उसमें इट्स नो लॉन्गर अबाउट अ वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज, इट्स अ वॉर ऑफ नैरेटिव्स। जो अपना चूरन ज्यादा बेच सके वो ये है। तो पॉइंट ये है कि भाई अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप सही लोगों, अगर आपको लगता है कि हम ठीक पाथ पे हैं,
तो सर आइए कम से कम विजुअल सपोर्ट दीजिए, हम कोई पैसे नहीं मांग रहे, ये तो बाय मी अ कॉफी भी नहीं लगाते, और मेरा वैसे भी मेरा बाय मी अ कॉफी इज ओनली फॉर एनआरआईज। तो प्लीज आइए, कम से कम इनको मैं यूट्यूब से लेके आया हूँ जहां तो इनको रेवेन्यू भी मिलता है, तो इनको सपोर्ट दीजिए। वी वांट हिज स्पेसेस टू बिकम, मेरा तो देखिए बिगेस्ट वो है, संचित की स्पेस होती है उतना तो मैं नहीं कह रहा, वो तो बहुत अच्छे बंदे हैं, वो दे आर डूइंग फिनोमिनल जॉब, बट वन बिलो संचित स्पेस एज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू बी लवनासुर स्पेस। और कल से सर इस पे ना वो मेरा फेवरेट हैशटैग लगा देना, पहले जैसे मेरा आईसी स्पेस होता ना, आपका हैशटैग DTR होना चाहिए, ये हमारा एक ब्रांड है ठीक है जो सर, हमें DTR रिवाइव स्पेस। करना है। ठीक है, ठीक है सर, DTR स्पेस हम अभी भी, हाँ DTR जब स्पेस, जब ओके जब गॉट इट। खुराम आता था ना, आते थे तो मैंने हैशटैग DTR लगाता था, बट बाद में मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मेरे पीछे बहुत लोग पड़ गए थे, क्योंकि बाद में बताऊंगा। तो पर वो हमें अपना है हाँ हैशटैग, बिकॉज वी हैव टू, द एम इज कि उसके बाद इट्स अ टू फ्रंट वॉर, इट्स नॉट जस्ट ट्विटर, उसके बाद इट्स यूट्यूब करेक्ट। एज वेल। यहाँ से फिर हम यूट्यूब पे भी लेके जाएंगे, तो ये अपने ही बंदे सारे। तो दिस इज द वॉर हैज स्टार्टेड, प्लीज ज्वाइन। नहीं करना तो यू आर मोर देन वेलकम टू लीव। Choose a side, pick a side, पिक come साइड, on. मैंने तो अपनी साइड चूज कर दी है सर। आई नो लॉन्गर विल होस्ट द लॉन्गर स्पेसेस, it will be Raj who will be hosting the longer spaces, my brother, and जिसको आना है आओ, अगर मेरी शक्ल पसंद है, आवाज पसंद है, तो मैं यहीं मिलूंगा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, इट्स एज सिंपल एज दैट। चलिए ठीक है, तो with this we concluded, and let me end it with what better than Vande Mataram. Here we go. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam, Malayaj Sheetalam, Sashashamalam Mataram, Vande Mataram, Subrajyotsna Pulakitayamini, Pullakusumitah Drumadalashobhini, Suhasini Sumadhure Bhashini, Sukhedam Varedam Mataram, Vande Mataram. Thank you, ladies and gentlemen, for joining. We shall be seeing you tomorrow. Stay awesome. Stay assured. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.